See, alternating current में first we'll do little basics. Basics में we'll understand the equation of alternating current. We'll understand what is average value and RMS value. Okay. Then you'll understand the role of RMS in energy calculations. Okay. And उसके बाद we'll also understand how AC measuring devices are different from DC. Okay. And then we'll start with circuit theory. Circuit theory में we have L, C and R. We'll see how inductor behaves in a AC source. Okay, how capacitor behaves in AC source. Same for resistor. Okay, because हमने इनका behavior कहाँ पे देखा है? Only in DC, है ना? ठीक है. If you remember, in DC source, capacitor will charge and it will allow current until it's fully charged, right? उसके बाद it becomes a open circuit. वैसे ही इंडक्टर में उल्टा था, है ना? If you remember, इंडक्टर में जैसे ही we switch on the circuit, it will behave like a open circuit, and then बाद में it becomes short circuit. So we'll see all of these behaviors we'll discuss. Okay. उसके बाद we'll combine all of them together in LCR circuits. Okay. LCR को तीनों को एक साथ combine करेंगे. LCR series we'll do. Okay. LCR series का then we have a use also as oscillating circuits. ठीक है, तो we'll see LCR as LC oscillation पढ़ लेंगे. Okay. LC oscillation के बाद we'll also see LCR parallel circuits. And then we have what is left? We have transformer which was left for us. वो भी कर लेंगे. Okay. And I think we did not discuss eddy currents also, right? So we'll discuss eddy currents also. This was supposed to be discussed in EMI only, but इसको यहाँ पे discuss कर लेंगे. ठीक है? तो ये है अपना syllabus. चैप्टर इज स्मॉल. ओके, आज कोशिश करेंगे कि बेसिक्स खत्म कर दें. ओके, और जो ये जो पार्ट है दिस, यहाँ पे विल डू सम डेरिवेशंस आल्सो. दिस टू पार्ट्स, दिस यहाँ पे वी कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज इम्पीडेंस. जेड करके एक कंसेप्ट है, तो वो डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझते हैं. हाउ डू यू प्रोड्यूस एसी? यू रिमेंबर हमने किया था एक प्रॉब्लम जहाँ पे वी हैव नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स के बीच में वी हैव लेट्स से है ना एक कॉइल है ना, विच इज देयर आर स्लिप रिंग्स यहाँ पे, एंड देन रेजिस्टर इज देयर. एंड इफ आई रोटेट दिस कॉइल, okay, with angular velocity omega, then EMF induced was minus d phi by dt, right? And we could substitute phi as NBA cos theta, and theta को we could write as omega into t, right? Because यहाँ पे angle change हो रहा है as the coil is rotating. जब coil घूम रहा है तो area change नहीं हो रहा है. field lines change हो रहा है क्या? field lines भी वैसे ही है. B is also same. तो यहाँ पे जो angle between area vector and field line वो change हो रहा है बस. So if you substitute that, you get E is equal to minus d phi by dt. Phi को substitute कर दो तो NBA cos omega t, right? And then cos का वैल्यू क्या है? माइनस साइन ना, तो you'll get E का वैल्यू as NBA omega sin omega t. Okay, and this represents the peak value, isn't it? तो ये peak value represent करते हैं, इसको E is equal to E naught sin omega t हम लिख सकते हैं. And if I draw the graph appears to be like this, isn't it? E versus time graph, है ना? This is 0, this is capital T time period, which is 2 pi by omega, है ना? और ये जो तुम्हारा वैल्यू है, this E naught which is NAB omega. तो याद है क्या? तो this is a formula. This is how EMFs are generated, and current if you find, it will be E upon R in this case, and that will be E naught by R sin omega t. Correct, which is I naught sin omega t. Any questions? Okay. Now in general, see, this is the expression that we had got. So ऐसे, if I rotate coil into a constant magnetic field, I am able to get the EMF generated is nothing but AC EMF, right? In general, we know that कि the expression can be written as like this. AC EMF लिखना है हम लोग अगर, तो in general ऐसे लिख देते हैं हम लोग. E is equal to E naught sin omega t plus phi. Correct? And you know this is what? This is the peak value. ये peak value है. ये क्या है? Angular frequency, है ना? What is angular frequency? It will give you idea of time period. Omega is 2 pi by t. या इसको 2 pi f लिख सकते हैं ना, frequency, है ना? Okay.
and this is time, this is instantaneous time, and what is this phi? Okay, it is initial phase, it is not phase, initial phase बोलेंगे, initial phase है ना. ग्राफ में if you remember that represents shift. phi 0 है तो ग्राफ ऐसा आएगा है ना, और phi pi by 2 तो ग्राफ like this, isn't it? है ना. तो that shift in graph is basically your initial phase. तो याद है क्या हमको? और what is this E? इसको बोलेंगे instantaneous, है ना, instantaneous EMF at any instant. Similarly we can say करंट का भी जनरल एक्सप्रेशन लिखना है तो इसको I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बोल सकते हैं. तो याद है कि आपने ऐसी चीज़ नॉर्मल हमने एसएचएम में भी ऐसे इक्वेशंस देखे हैं, ठीक है, सेम ही है. ओके, एट एनी इंस्टेंट इफ यू वांट ईएमएफ यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, राइट. बट व्हाट इफ आई वांट एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू से कैसे निकालेंगे? समझ लो तुमको ई एवरेज पूछा उसने तो कैसे मिलेगा? हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है. दे आस्क यू एवरेज वैल्यू, हाउ डू गेट द एवरेज? एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन y एवरेज, या कोई कोई उसको f एवरेज भी बोलता है, f ऑफ x एवरेज. कैसे निकालेंगे? बेसिकली यू हैव फंक्शन लाइक दिस, लेट्स से फंक्शन ऐसे. ओके, लेट्स से आई वांट एवरेज बिटवीन x1 नेक्स्ट टू क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx है ना, फ्रॉम x1 to x2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x1 to x2. डू यू एग्री? तो ये इन दिस केस ई एवरेज शुड बी डिफाइंड नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ ई dt, सही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई dt. ई इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलो तुम, ठीक है. ओके, basically this is E of t, correct? Okay, divided by time interval, whatever time you have, t1 से लेकर t2 तक. This is average, correct? समझ में आ रहा है क्या? अब समझो निकालना है हमको, अगर ये एक्सप्रेशन के लिए निकालना है, let's try to do this with E is equal to E naught sin omega t plus phi. I'm taking phi as 0. Okay, let's assume just for ease of calculation, ठीक है. therefore E will be E naught sin omega t. इसके लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालना है क्या निकल के आएगा बताओ? सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर ये टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो लेट्स से इफ आई फाइंड दिस फॉर अ टाइम 0 से लेकर t तक के लिए निकाल रहे हैं तो ये ET है तुम्हारा. क्या लगता है क्या आएगा आंसर? सी न्यूमेरेटर में यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ E dt 0 से लेकर t तक, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेकर t तक. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ E dt? इट्स एरिया अंडर द कर्व, है कि नहीं? ठीक है, तो दिस एरिया यू नो दैट दिस एरिया इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सिमेट्रिक कर्व है, ठीक है. तो क्या बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव वैल्यू जितना ही पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही नेगेटिव वैल्यू भी है, करेक्ट. तो ऑब्वियसली ये जो एरिया अंडर कर्व है मुझे 0 आने वाला है. तो ई एवरेज फॉर फुल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए अगर फुल साइकिल के निकाल रहे हैं, फुल साइकिल मतलब 0 से लेकर t तक, कैपिटल T तक, ठीक है. तो आंसर क्या आने वाला है? 0. समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इफ आई कैलकुलेट इट फॉर हाफ साइकिल? लेट्स से E एवरेज इस इंटीग्रेशन 0 to t by 2, हाफ साइकिल निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल का एवरेज E dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेकर t by 2 क्या आएगा बताओ? सो इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट साइन ओमेगा t dt, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. 0 से लेकर t by 2, करेक्ट. एंड दिस विल बी dt 0 से लेकर t by 2. ये तो पता है तुमको t by 2 आएगा तो इसको 2 by t लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना. डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, E नॉट भी बाहर आ जाएगा. तो कैन वी टेक 2 E नॉट अपॉन t बाहर, ठीक है. अभी इंटीग्रेशन में वी हैव ओनली साइन ओमेगा t dt, है कि नहीं, है ना. व्हाट इज इसका इंटीग्रेशन? टेल मी. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -3 प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. सही लिखा हो ना? ठीक है, 0 से लेकर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है. सही है ना. ओमेगा को बाहर निकालो, कांस्टेंट है वो भी, माइनस कुछ बाहर निकाल सकते हो. ओके, 2 E नॉट अपॉन टी
ओमेगा बाहर आ गया तो इसको 2π/t लिख सकते क्या, है कि नहीं? ओमेगा इज 2π/t, ठीक है, तो टी बाय बाय, ये भी बाय बाय, यू हैव और यहाँ ब्रैकेट में व्हाट डू यू हैव माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है, तो यू हैव अपर माइनस कॉस ओमेगा इज 2π/T है ना, इनटू अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस कॉस 2π/T इनटू 0, करेक्ट? सो व्हाट डू यू गेट ब्रो? ये और ये कैंसिल, ये और कॉस पाए -1, तो माइनस और -1 +1, ठीक है, और यहाँ पे भी +1 है, तो 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे सब कैंसिल, E0 अपॉन पाए है ना, तो आंसर है 2 E0 अपॉन पाए. दिस इज ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल. हाफ साइकिल एवरेज यही है. इनफैक्ट इट मेक्स सेंस हियर टू कैलकुलेट हाफ साइकिल, बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब तुम ग्राफ बना रहे हो, ओके, ये जो हम ग्राफ करते हैं ई वर्सेस टाइम का, तो तुमको पता है कि ये जो इफेक्ट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सी मैथमेटिक्स वाइज इट्स फाइन, मतलब दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बट व्हेन यू सी फ्रॉम फिजिकल स्टैंड पॉइंट से, ठीक है, तो हमको पता है कि अगर ये एसी का जो सिंबल है वी ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट, ठीक है, क्योंकि टू टेल यू दैट कि पोलैरिटी इज नॉट फिक्स्ड, तो पहले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो बाद में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो मतलब करंट तो उतना ही फ्लो होगा, ईएमएफ तो उतना ही मिलेगा अपने को, खाली वो जो साइंस है वो चेंज हो गया. समझ में आ रहा है क्या? तो व्हेन यू फील द करंट इट हैज टू बी फीलिंग वाइज तो सेम ही है, मतलब इफ आई समझ में, ऐसा नहीं कि मतलब करंट नेगेटिव कम हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. समझ में आ रहा है ना? इट मेक्स सेंस. व्हेन यू फील इट, यू फील कि तुम्हारे लिए एक्चुअली ऐसे ही है, मतलब ग्राफ है ना, ठीक है, बस खाली मतलब व्हेन यू सी द वैल्यू वाइज, ठीक है, ओके, जस्ट तो मॉड पार्ट तो ऐसे ही ग्राफ दिखेगा ये. तो अगर हाफ साइकिल एवरेज ले रहे हैं तो मेक सेंस, इजंट इट? मतलब अगर वैल्यू वाइज देखे, मॉड वाइज देखे तो ग्राफ ऐसे ही है, ठीक है, तो इसलिए हाफ साइकिल निकालना यहाँ पे एवरेज सेंस बनता है, मतलब, और इसलिए बहुत जगह पे हाफ साइकिल एवरेज कैलकुलेट करते भी है यहाँ पर. तो फुल साइकिल में जो वैल्यू मिलेगा वो 0 ही मिलेगा मैथमेटिकली. इज मेकिंग सेंस? समझ में आ गया? ओके, नाउ इफ आई लुक एट दिस फॉर करंट, मैंने करंट का एक्सप्रेशन ये लिया और उसमें भी अगर 5 डाल दिया तो आई विल गेट दिस, राइट? सिंस एवरीथिंग इज सेम, तो आई कैन से दैट यहाँ पे भी आई एवरेज फुल साइकिल will be 0 and I average half cycle will be 2I0/π. ये तो हम बोल सकते हैं बिकॉज मैथमेटिकली कोई खास फर्क नहीं है ना? एनी क्वेश्चंस हियर? ये समझ में आ गया? तो कभी कभी ऐसे डेरिवेशंस पूछे थे 2 मार्क के लिए तुमको, बट आई होप यू गॉट इट. ओके, नाउ कैन वी ट्राई सॉल्विंग दिस फॉर ग्राफ? समझ लो, ऐसे क्वेश्चन दिया, ग्राफिकली भी निकालने बोल सकते हैं, समझ लो ऐसा भी क्वेश्चन है. ओके, ऐसा कोई okay, let's say if I make a curve like this, and let's say this is your E, this is your T, and this is one cycle T, this is 2T, this is 3T, and this is 4T, like this. This is 0, and let's say this value is some E0. And they ask us find E average, and actually we can find E RMS also.
I not discuss RMS here, right? Let's discuss actually RMS also, then we'll come to this problem. ये मैंने एवरेज वैल्यूज निकाले, राइट? डू यू रिमेंबर RMS वैल्यूज? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर याद है क्या आपने को? ओके, RMS. तो we'll see the importance of RMS in energy calculation also. Okay, because I told you ना कि हमको RMS ही लेते हैं जब एनर्जी कैलकुलेशन आता है. रिमेंबर दैट 220 वोल्ट्स का वैल्यू लिया था हमने इन डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद है क्या? 220 कहाँ से आया था? विल डिस्कस दैट आल्सो. ओके, बट हाउ डू आई डिफाइन RMS? इफ आई हैव E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो RMS वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? याद है क्या किसी को? वो VRMS याद है तुम लोगों को? VRMS कैसे निकाले थे हम लोग? कैसे फॉर्मूला क्या था उसका? रूट मीन स्क्वायर ना. तो पहले स्क्वायर करते थे, पहले V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर ऐसे हमने किया था, राइट? है ना? अपॉन फिर मीन निकाला था हमने, स्क्वायर का मीन, इजंट इट? है ना? उल्टा चल रहा है यहाँ पे, है ना? पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाल लिया, फिर रूट कर देते. जैसे VRMS, इजंट इट? तो यहाँ पे मतलब पहले फंक्शन को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? फिर मीन निकालेंगे एंड देन रूट इट, राइट? तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, E स्क्वायर dt, ओके, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt. दिस इज स्क्वायर मीन. समझ में आया क्या? ओके, बराबर है ना? देखो स्क्वायर किया फंक्शन को और फिर डिवाइड बाय इंटरवल कर दिया, राइट? तो मीन मिल गया. लेट्स से T1 से T2 जा रहे हैं, ओके, एंड देन आई हैव टू रूट इट. Then I have to root it. This is the definition. Sorry, this is ERMS. सही है क्या? समझा कैसे किया? स्क्वायर कर लिया, फिर मीन निकाल लिया हमने एंड देन रूट इट. इज मेकिंग सेंस एवरीवन? पक्का? चलो निकालते हैं यहाँ पे कर लेते हैं इसको कि अगर ERMS पूछा, द एक्सप्रेशन गिवन टू अस इज E0 sin ओमेगा t प्लस 5, बट आई एम टेकिंग 5 as 0. ओके, ठीक है? एंड दे हैव आस्क्ड अस कि गिव मी ERMS. तो पहला स्टेप क्या है? पहले ये इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं. फॉर वन साइकिल वी आर कैलकुलेटिंग, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं पहले. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल से इंटीग्रेशन ऑफ E स्क्वायर dt, and let me find first from 0 to t. तो न्यूमरेटर पार्ट पहले निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है? करते हैं. तो लेट्स पुट द वैल्यू. व्हाट डू गेट? E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक. सही है? ठीक है. एंड देन E0 स्क्वायर, यस, बाहर आएगा. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने तो पहले ही बताया था इसका एवरेज वैल्यू क्या आता है. हमने वी नो 1/2 t/2 हो जाएगा यहाँ पर, बट सॉल्व कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है? ओके, करो. क्या आएगा? 1 माइनस cos 2 ओमेगा t द होल डिवाइड बाय 2 dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक. ठीक है? ओके, एंड दैट विल बी E0 स्क्वायर बाहर, ओके, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, करेक्ट है ना? बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t dt. ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, चलेगा ये? तो सही तो किया मैंने, है ना? ये हाफ को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया. एक्चुअली इसको यहाँ पे रख लेते थे इसके साथ, है ना? E0 स्क्वायर के साथ रहते इसको. I to have extra bracket. Yes, this makes sense ना? E0 स्क्वायर बाई 2 एंड देन 1 dt का इंटीग्रेशन और माइनस cos 2 ओमेगा 2 dt का इंटीग्रेशन. करेक्ट? करो, आ जाओ. क्या आएगा बताओ? E0 स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके t तक जा रहा है, राइट? तो t आएगा माइनस साइन 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा. ओके, लिमिट्स 0 से लेके t तक. सही है? दिस विल बी 0 ओमेगा 2 t माइनस, क्या होगा ये 1/2 ओमेगा साइन में रहते हैं. ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, ठीक है? तो साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू टी, करेक्ट, माइनस साइन 0, करेक्ट. तो ये तो तुम्हें बताइए क्या आएगा?
4 पाई 0, तो दिस इज ऑल्सो 0, दिस ऑल्सो 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया. ओके, तो तुमको मिला आंसर ए नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टी. ये टी है ना, है कि नहीं? दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन. तो न्यूमरेटर पार्ट इज डन. तो नाउ आई विल से ई आर एम एस विल बी रूट ऑफ दिस इंटीग्रेशन वी गॉट एज ई नॉट स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइड बाय, यू नो दैट दिस इज 0 टू टी होगा ना इंटीग्रेशन, ये वाला टाइम. तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी, राइट? तो कैपिटल टी मिलेगा. समझ में आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी, लिमिट्स आर 0 से टी तक. तो सॉल्व किया तो व्हाट डू आई गेट? E naught upon root 2. This is very famous and very important formula. Similarly for current we can write as, similarly for I naught sin omega t we can write I RMS as I naught upon root 2. It's very very important formula for us. Okay, बाद में बहुत यूज करेंगे इसको. But I hope you got the derivation part. समझ में आया क्या? Any questions anyone? पक्का? Okay. If I have understood this, then we should move to this. यहाँ पे पूछा है कि फॉर वन साइकिल फाइंड एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू. एक सब मैं करूँगा, एक सब तुम भी ट्राई करोगे, ठीक है? चलो कैसे करेंगे इसको? लेट्स स्टार्ट विद एवरेज. लेट्स स्टार्ट विद एवरेज. एवरेज का डेफिनेशन क्या है पहले बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. करेक्ट? 0 से लेके टी तक करना ही है. तो तुमको पता है कि व्हाट इज दिस एरिया अंडर द कर्व? वो तो पता है. एरिया तो निकाल सकते हैं ना हम लोग. यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी आराम से ये एरिया तो निकाल सकते हैं, है ना? ये एरिया निकाल सकते हैं हम लोग. क्या एरिया आएगा? इट विल बी हाफ इंटू ई नॉट इंटू टी. दैट इज द एरिया पार्ट अपॉन, ये तो पता है हमको टी आने वाला है. कैंसिल दिस आउट, व्हाट डू आई गेट? ई नॉट अपॉन 2. डन. ठीक है. हाउ अबाउट नेक्स्ट पार्ट? ई आर एम एस. इसमें ये कर सकते हैं क्या? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट. करेक्ट है ना? इसको कैसे करेंगे? इसके तो फंक्शन चाहिए. फंक्शन चाहिए ना यहाँ पर. क्या क्या मिलेगा फंक्शन बताओ? ई इज इक्वल टू, है ना, क्या आएगा? स्लोप ना. स्लोप इज ई नॉट अपॉन टी इंटू स्मॉल टी. समझ में आया क्या कैसे निकाला ये? समझा क्या? समझा कैसे निकाला? जिसको नहीं समझ में आया उसको समझा ऐसे किया हमने. y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. क्या बोलते हैं इसको मैथ्स में? स्लो पॉइंट फॉर्म. समझ? एक पॉइंट ये लिया है, दूसरा पॉइंट ये लिया है. ठीक है. एनी क्वेश्चंस हियर? ओके चलो करते हैं सॉल्व. अच्छा क्या आएगा? सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूमरेटर रूट में. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी, दैट मींस दिस विल गेट स्क्वायर्ड. ओके, ये दोनों कांस्टेंट ही है, इनको बाहर ही निकाल लेते हैं. तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बाहर. इंटीग्रेशन में आया है बोले टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, बट वो स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो टी स्क्वायर डी लेना चाहिए. चमका? ओके, ये 0 से टी जा रहा है अपॉन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? तो वो तो टी होने वाला है. ठीक है. ओके लेट्स गो. व्हाट इज इसका आंसर? टी क्यूब बाई 3. तो आई गेट ई नॉट स्क्वायर अपॉन, दिस आल्सो टी क्यूब ओनली, राइट? मतलब टी स्क्वायर एंड टी क्यूब बन जाएगा. ठीक है. यहाँ पे टी क्यूब बाई 3, सो टी क्यूब बाई 3 रूट में आएगा. तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट ई नॉट अपॉन रूट 3. दैट्स माय आंसर. देखो समझ में आ रहा है क्या अपने को? पक्का? एनी क्वेश्चंस हियर? नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे? ठीक है ट्राई करो. चलो ट्राई करते हैं. बोले ऐसा कुछ था यार. एंड
1 second, I need one more reference line. Okay. The curve is like this. ठीक है, and this is, let's say, E naught, and this is minus E naught. ठीक है, and this is one cycle, let's say 0 t 2t 3t 4t and so on. ठीक है, this is E versus t. Okay, find E average, E RMS for one cycle. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? फॉर वन टाइम पीरियड ट्राई करो, देखो क्या आता है. हाँ, आ जाओ. एवरेज तो 0 है, निकालने की जरूरत है. जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया यहाँ पे भी आने वाला है. ठीक है, बट करना तो कर सकते. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ई? मैं डायरेक्टली आरएमएस सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, व्हाट इज ई विल बी इक्वल टू 2 ई नॉट अपॉन टी, स्लोप है ना. ठीक है, और स्मॉल टी माइनस ई नॉट, पाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सही है, अब लगाओ यहाँ पे. सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट लेना है. पहले ये इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर कैसे आएगा बताओ? 4 ई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, प्लस ई नॉट स्क्वायर माइनस 4 ई नॉट स्क्वायर बाई टी. सही है क्या? डी टी 0 से लेके टी तक जाना है अपने को. ओके, एंड करते सॉल्व. यहाँ पे क्या आएगा? 4 ई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3. ठीक है, सही है, प्लस ई नॉट स्क्वायर टी माइनस ई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 2, है ना. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो, टी स्क्वायर और यहाँ पे टी फाइव हो जाएगा. तो 4/3 ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, और साथ में टी भी आएगा, सॉरी. ओके, प्लस ई नॉट स्क्वायर टी माइनस, ठीक है, 2 ई नॉट स्क्वायर टी. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैंसिल होकर बिल्कुल माइनस ई नॉट स्क्वायर, राइट. तो 4/3 माइनस 1/3 ई नॉट स्क्वायर टी. ठीक है, अंदर पुट द वैल्यू ये. ठीक है, तो ई नॉट स्क्वायर बाई 3 टी है ना, अपॉन टी का रूट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट बाई किसको उसको आया भाई है. शाबाश. ठीक है, समझ में आएगा. इट्स नॉट दैट टफ. ये एवरेज भी निकाल सकते हो. आई थिंक यू विल गेट 0 ओनली. ओके, एक सम और देता हूँ, एक और करो. थोड़ा इजी करता हूँ मैं. ठीक है, वी कैन पुट पैराबोलिक कर्व्स आल्सो, वो होमवर्क दे दूंगा. ओके, ओके, एंड समझ लो ग्राफ ऐसे दिए लाइक दिस.
इस टाइप का कुछ है. Okay, this value here is, let's say, some E naught. ये E naught है, ये T है, ये T by 2 है. ओके, ये T by 2 है, ये 2T है, ये 3T by 2. Okay, so one cycle is this. This is a one cycle. And what else? I think everything is done. Find E average and E RMS. Find E average and E RMS. Try करो. E average is 5 by 2. Try करो. So what is the equation from? Look at E. It is E naught by 2 E naught by TT, and from the interval 0 to T by 2, and when time is between 0 and 2 by 2, and it is E naught from T by 2 to T. तो क्या करें, एवरेज निकालेंगे फिर आराम से निकालना है. एवरेज निकालो. चलो दोनों ही कर रहे हैं. इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे राइट द फंक्शन ई एवरेज. बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेके टी तक. करेक्ट. डू दैट. व्हाट डू यू गेट वहाँ पे? 0 से लेके टी तो स्प्लिट करेंगे ना इंटीग्रेशन को. 0 से लेके टी बाई 2 तक वी हैव अनदर फंक्शन 2 ई नॉट बाई टी टी प्लस टी बाई 2 से लेके टी तक वी हैव ई नॉट डी टी अपॉन टी. करेक्ट. एंड दिस विल बी हाउ मच? इट इज 2 ई नॉट अपॉन टी टी बाई 2. करेक्ट. प्लस यहाँ पे आएगा ई नॉट टी बाई 2. टी टी कैंसिल, 2 2 कैंसिल अपॉन टी. सही किया ना? गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? ठीक है. टी स्क्वायर बाई 2 आएगा ना? टी स्क्वायर बाई 2 आएगा राइट? टी स्क्वायर बाई 2 आएगा राइट, है ना? और 5 टी स्क्वायर बाई 4 आएगा राइट? टी स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 इंटू 4 है ना? तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा. यस. सो यू हैव ई नॉट टी बाई 4 प्लस टी बाई 2. ई नॉट टी बाई 2 क्या आएगा? 4 आएगा ना? अपॉन टी. कैंसिल दिस आउट. ठीक है. यू गॉट इट. 3 नॉट बाई 4 इज द एवरेज पार्ट, है ना? अबाउट ये आरएमएस. सो स्क्वायर करेंगे पहले तो विल गेट 4 ई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. करेक्ट. इंटू टी स्क्वायर डी टी प्लस ई नॉट स्क्वायर डी टी, है ना? 0 से लेकर टी तक ये टी बाई 2 जाएगा और ये टी बाई 2 से टी जाएगा, है ना? वी आर कैलकुलेटिंग एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी फर्स्ट. ठीक है. व्हाट डू यू गेट यहाँ पे? 4 ई नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. दिस विल बी टी क्यूब बाई 3, तो दैट इज टी बाई 2 क्यूब बाई 3, है ना? प्लस ई नॉट स्क्वायर टी माइनस टी टू टी बाई 2 ही मिलेगा. सही है ना? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आप लोग को? देखो, टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर जाएगा और 4 और यहाँ से 4 तो 2 6 ई नॉट स्क्वायर बाई 6 टी. करेक्ट. प्लस ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 4 बाई 6, तो 2 by 3 2 by 3 e naught square t. And then if you want RMS, E RMS is equal to root of
नॉट स्क्वायर बाई टी अपॉन, तो है ना, एक होमवर्क ले लो या अभी करना है, नहीं इसमें काफी टाइम बचेगा, एक होमवर्क ले लो, एक सम देता हूँ, एक और रुको, एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, वो हमने डिस्कस नहीं किया। Let's say you have a question like this, a parabolic curve, straight line, है ना, something like this sort. Okay. Okay. है ना, 0 t/2 t 3t/4 and so on. Okay, this is parabola. निकाल सकते हो तुम क्वेश्चन, y का वैल्यू दिया और x का वैल्यू दिया ना, ये पॉइंट के लिए सब्स्टिट्यूट कर लो, ये मिल जाएगा, है ना। मैंने सही लिखा है ना मैंने, करोगे क्या अभी, करोगे होमवर्क करोगे, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, ई नॉट a प्लस बी साइन ओमेगा टी, फटाफट इसका ई आर एम एस और ई एवरेज, फटाफट, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, यू विल सी इन लॉट ऑफ बुक्स, ये कर दो एक फटक से। आ जाओ, if not E average, it will be integration of E dt upon integration of dt, that will be integration of a plus b sin omega t dt upon integration of dt, right। तुमको पता है इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा 0 से लेकर t तक, ये तो गया 0 जाएगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, a t अपॉन t a, सही है, सही है ना। हाउ स्क्वायर ई आर एम एस के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का रूट, if you look at this integration of e square, which will be a square plus b square sin square omega t plus 2ab sin omega t, right, dt। now this का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t/2, ठीक है, इसका 0, करेक्ट, तो you will get a square plus b square by 2 t, सही है ना। and then you substitute here, what do you get, a square plus b square by 2 t cancel, right, उसका रूट, सही है, यही आया तुम लोग को, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड, ये जो इक्वेशन है जो हमने लिखा है graphically if you see it's sin only, right, this graph actually b sin theta graph क्या होगा, this is b sin theta, है ना, this peak value will be, right, if I draw graph of b sin theta कैसा होगा, ऐसे होगा, b sin theta, peak value will be b, right। a ऐड कर दिया मतलब क्या है, the graph shoots by, this is a,
दिस इज बी। समझा ना मतलब? ठीक है, अगर ए ऐड कर दिया फंक्शन में पूरा फंक्शन शिफ्ट हो रहा है ऊपर ए से। इज मेकिंग सेंस? ये बी साइन थीटा है अगर, ये दिस इज अ ग्राफ, इफ यू ऐड ए द एंटायर ग्राफ शिफ्ट ऊपर बाय दैट मच। तो यू कैन डू द मैथ्स फ्रॉम ग्राफ आल्सो। सॉरी, एनी क्वेश्चंस? समझ में आया इतना? ठीक है, थोड़ा और एक पॉइंट बता देते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। जैसे ये रजिस्टर और उसमें करंट आई जा रहा है, वेयर आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ हाउ डू यू राइट द हीट प्रोड्यूस्ड? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी व्हेन आई इज कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो व्हाट यू विल डू? इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, है कि नहीं? है ना, स्मॉल टाइम टी में निकाला एंड इसको इंटीग्रेट कर लिया हमने, और दैट विल बी हाउ मच? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। एक्चुअली ऐसे रखो, अगर आर कांस्टेंट है तो इसको आई स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज आई आर एम एस डेफिनेशन? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आई आर एम एस? Definition of I square dt upon entire dt the whole root, which implies 0 से लेकर t लेते हैं, which implies that कि integration of I square dt 0 से t will be equal to I RMS square t। सही है? सही है क्या? समझ लो, मैं यहाँ पे भी t तक निकाल रहा हूँ हीट प्रोड्यूस। कैन वी राइट इसको? आई स्क्वायर आर एम एस आर टी हीट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? ये देखो, तुमको समझना है, ठीक है, कि आई आर एम एस प्लेज अ रोल इन कैलकुलेटिंग हीट। यहाँ पे आई नॉट आया क्या? आई आर एम एस आया, राइट? ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस कि there is a AC source of I is equal to I naught sin omega t और रेजिस्टेंस R है और उसमें हीट निकालो टाइम t के लिए। दिस इज सेम एज कैलकुलेटिंग considering a DC source which gives me current as IRMS which is actually I naught upon root 2 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, है कि नहीं? मतलब ये लिखने से अच्छा कि रेजिस्टेंस में I naught sin ओमेगा t जा रहा है, मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि रेजिस्टेंस में आई नॉट अपॉन रूट 2 जा रहा है और हमने एक हीट कैलकुलेट कर लिया। मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, इसीलिए ठीक है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी वाला सर्किट हमने क्या किया था? हमने सिंपली एसी सोर्स को रिप्लेस कर देना डीसी से एंड वी यूज्ड टू कॉल इट 220 वोल्ट्स। यू रिमेंबर? 220 उसका आरएमएस वैल्यू है। समझ में आएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज आरएमएस वैल्यू, व्हिच मींस व्हाट इज द पीक वैल्यू? more than 220 volts. है ना? तो पीक वैल्यू वुड बी, द इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस 220 रूट 2, करेक्ट? पीक वैल्यू ये होगा साइन ओमेगा टी व्हिच इज एक्चुअली 311, सॉरी अप्रॉक्सीमेटली। समझ रहे हो? क्योंकि एनर्जी कैलकुलेशन में ये इस वैल्यू का रोल है, इसलिए इसको कंसिडर करते हैं। समझ में आएगा? बाकी एक्चुअली तो तुमको 311 का झटका लग रहा है, 50 हर्ट्ज है ना इसका, इफ यू रिमेंबर 50 साइकिल्स पर सेकेंड है इसका, ठीक है? ओके, 50 हर्ट्ज मतलब ये जो पीक वैल्यू है 311 का, तुमको 50 बार ऊपर 50 बार नीचे 100 बार आ रहा है, isn't it? 311 का जो झटका लगेगा, ठीक है, 100 टाइम्स इन अ सेकेंड लगने वाला है। तो फॉर अस हमको तो 311 लग रहा है, पर एनर्जी कैलकुलेशन में ठीक है 220 वोल्ट से आरएमएस वैल्यू का रोल है, वो हमने प्रूव करके दिखाया यहाँ पे। इसलिए भी कैलकुलेट आरएमएस वैल्यूज, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू हीट प्रोड्यूस और पावर या ऐसा करने के लिए। समझा? एनी क्वेश्चंस? इज मेकिंग सेंस व्हाट आई हैव डन यहाँ पे? तो इसलिए दिस इज रोल ऑफ आरएमएस, रोल ऑफ आरएमएस इन एनर्जी पावर कैलकुलेशन।
वो मिलता ही वैसा है वो। एक लास्ट की बात है कि इफ आई यूज, तुम लोग को थोड़ा एमसीजी याद है क्या? याद है वो इट यूज्ड टू वर्क लाइक दिस कि वी हैड नॉर्थ साउथ एंड देन वी हैड अ सॉफ्ट एंड कोर एंड देन यहाँ पे कॉइल घुमा के रखा था हमने और यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। इट वाज कनेक्टेड टू सम टॉर्शनल वायर ऑल दोस थिंग्स एंड देन there's a needle here, right? Do you think this device will work with AC source? क्या लगता है? ये जो पूरा था, this was the galvanometer, right? है ना? If I connect this kind of galvanometer with a AC source and I try to measure current, will it work? Is my question. No, Why not? because the current flow will change. मतलब MCG लगाया यहाँ पे। बार बार मतलब कितनी बार? 50 साइकिल पर सेकंड है। मतलब इमेजिन कि मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो तुम्हारा सिलेंडर है, ये घूमने ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूमेगा, दो साइड घूमेगा क्या? ऐसे घूमता ही नहीं है, इतना फास्ट हो रहा है कि वो जगह पे स्टक हो जाता है ड्यू टू इनर्शिया, इट विल जस्ट बी स्टक। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देयरफॉर ये एमसीजी जो डिवाइसेस है विल नॉट वर्क, सॉरी, in AC, right? What to do? So we use something called as hot wire ammeter या वोल्टमीटर भी बना सकते हो। हॉट वायर एमीटर वोल्टमीटर का फंडा क्या है सुनो, ठीक है? वी नो दैट इज अ वायर, उसमें से अगर एसी पास कर दिया जाए तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, है ना? जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगा व्हाट विल हैपन? तो हीट प्रोड्यूस जो है IRMS पे डिपेंड करेगा, राइट? राइट? Now because of the heat produced, what will happen? It will melt, isn't it? ठीक है, ओके। तो मेल्ट करेगा मतलब हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाते हैं एक नीडल, ऐसे समझो, एंड बिकॉज व्हेन इट मेल्ट्स इट विल गो लाइक दिस। हाँ, मेल्ट रहेगा, राइट? जो नीडल है वो ऐसा हो जाएगा। आई एम टू अंडरस्टैंड, नीडल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, ऐसे। बट ये कैलिब्रेशन में फर्क क्या है ये समझो, ठीक है? नॉर्मल जो अपना एमसीजे कैलिब्रेशन होता है वो इवनली कैलिब्रेटेड होता है, राइट? इसमें ऐसा नहीं होगा। एक्सपांशन जो है एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्सपांशन कम हो जाता है, ठीक है? तो क्या हो जाता है, क्या यहाँ पे स्पेस्ड आउट रहेंगे और यहाँ पे एकदम क्लोज, ऐसे। तो कैलिब्रेशन इज नॉट इवन। समझ में आया क्या? मेकिंग सेंस? और मेजर क्या कर रहे हैं हम लोग इससे? आरएमएस वैल्यू। तो 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, हाँ, आरएमएस। सेकेंड, इट गिव्स यू आरएमएस वैल्यू, तो ये IRMS ERMS इज मेजर्ड, ठीक है? थर्ड इज कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन इज नॉट इवन लाइक DC। ये 3 पॉइंट्स को याद रखना है। समझ में आ गया बाउंसर? समझा क्या? ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक एमीटर यूज किया और मुझे करंट आया 10 एम्पियर्स, तो इसका मतलब ये है कि इट इज IRMS। ये चीज को ध्यान रखना है। पूरे AC सर्किट में यही पहला मिस्टेक होता है। समझा क्या? लोग क्या करेंगे कि दे विल थिंक कि अरे भाई साहब, दे विल राइट कि करंट इज मेजर्ड टू बी 20 एम्पियर्स, पीपल राइट I0 इज इक्वल टू 20। गलत। मेजर वर्ड यूज कर दिया, ठीक है? या कोई डिवाइस लगा के देख रहे हो, इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, वेदर इट्स वोल्टेज और करंट। या मेजर्ड वैल्यूज आर ऑलवेज RMS। डू यू रिमेंबर दिस? न्यूमेरिकल्स के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे ही वैल्यू दिया है, करंट इतना मिला, वोल्टेज इतना मिला, मतलब कौन सा वैल्यू है? अगर ऐसी वैल्यू है 20 एम्पियर्स करंट है, 40 एम्पियर्स करंट है, अगर ऐसी वैल्यू लिख दिया उसने, इक्वेशन नहीं दिया, अगर समझो, मतलब अगर ऐसे लिखा है तो यू नो दैट इट इज पीक वैल्यू, 20 इज पीक वैल्यू हियर। समझ में आ रहा है क्या? बट इफ आई जस्ट से कि करंट वाज फाउंड टू बी 20, दैट मींस इट इज आरएमएस वैल्यू। करंट वाज फाउंड टू बी 20 है तो कैसे फाइंड किया रहेगा? कोई डिवाइस लगा के देखेगा ना उसको। तो करंट इज फाउंड टू बी 20, वोल्टेज फाउंड टू बी 220, ऐसा कुछ दिया है, मतलब दोस वैल्यूज आर व्हाट?
RMS ऐसे ही वैल्यू लिख दिया गया खाली कि मेरे को ऐसे मिला, मेजर कर लिया, ये किया, अनलेस दिस यूज द वर्ड पीक और दे गिव यू इक्वेशन। पीक या इक्वेशन देंगे तभी हम एज्यूम करें कि वो पीक वैल्यू है, या इक्वेशन देख के मालूम पड़े कि वो पीक वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू क्या है, नहीं तो वैल्यू हमेशा RMS है। समझ में आया क्या? बिकॉज तुम्हारे डिवाइसेस तुमको हमेशा RMS वैल्यू ही देते हैं। इज मेकिंग सेंस? टू नॉट मेक दैट मिस्टेक इन AC सर्किट्स। इसलिए ये पहले ही पढ़ा दिया, मतलब कि रीडिंग लिखा है मतलब क्या है वो RMS, पीक वैल्यू उसको मत लेना। चमका? एनी क्वेश्चंस हियर? सबको समझ में आया क्या? चलो बस आज के लिए काफी है।